Good morning, class. Good morning, class. Good morning. So in the last lab, we have done DDA, fine, and different shapes. Means we can say that, yes. Good morning, good morning. So in the last lecture, we have done DDA and we have done the shapes like car, hut, and star, fine. So in today's lecture, we are going to discuss about Bressenham line drawing. Fine. So if anyone have any doubt in the Bressenham, you can ask. Yes, class. If anyone have any doubt in the Bressenham algorithm, then firstly we are going to discuss the Bressenham and then we are going to for its implementation. Anyone have any doubt? Okay, fine. No one have any doubt. Okay, then we are going to discuss its implementation. Fine. Okay, first of all, I just want you so that you can do your pre-lab question. Fine. Attempt your pre-lab question for 1.2. Fine. उसके बाद हम start करेंगे implementation. Is it fine? Okay. So attempt your pre-lab question first. Fine. After that, we will start discussing the implementation. Fine. So we have discussed two basic condition in the Bressenham, fine, and PK is the decision parameter, and we have discussed two condition. One is the value of PK is greater than equal to 0, and other one is value of PK is less than. So we have two conditions, fine. The first condition means we are going to select the next pixel, fine. So if pk is greater than equal to 0 means next coordinates are xk plus 1 and yk plus 1. Right? So basically on the basis of this formula we are going to write our code. Fine. So if means if condition or else condition. We have two conditions. Fine. Like earlier we did in the plus 1 +1 नीचे है ना then +1 अमृत yes बच्चे अमृता +1 means the upper coordinate we are going to choose fine you are talking about yk +1 okay
Okay, for what? The wavefront. Yes, yes. See, it means xk plus 1 means subscript. Subscript means successive point. Fine. Like we have xk. Fine. Xk is also subscript. Fine. Subscript means initial. This we xk is taken as initial coordinate. Fine. And as we have solved the numerical and we have um, prepared one chart. Fine. In that we have xk act as the previous pixel. Fine. And this is successive pixel. Means if I'm talking about in a line we have a 2 pixel. This one is xk. This next one is xk plus 1. Again, if we reach here and this one is now xk plus 1 and this one is xk. Fine. Like this. So this is subscript. नीचे ही जैसे आप लिख रहे हो ना xk और xk plus 1. फाइन. सो इट मीन्स दैट नीचे है बट इस केस में हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है +1. दोनों में हम 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं. फाइन. बट इन केस वी हैव xk plus 1. फाइन. और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा yk. फाइन. सेम पॉइंट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट. आपने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है सो आपको पता चल जाइए xk 2, xk plus 1 is 3. If yk is 2, yk plus 1 is 3. Like this. Fine. और इस केस में अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे आ जाएगा 3 2. Like this. Fine. Anyone have any doubt? Yes, class. Anyone have any doubt? Okay, fine. No one have any doubt? Screen is visible to all? Yes, class. Screen is visible. Okay, fine. Okay, so in this algorithm, basically we are going to draw a line. Fine, we have already discussed in the class. Screen is visible, no. Screen is not visible, बच्चे. Let me share the screen again. Fine. Is it visible now? Okay, fine. Okay, fine. Okay, fine. So in this, basically we are going to draw a line. Fine. So we have x0, y0. x0, y0 means we have initial point. Fine. This is a draw line function. हमने इसमें एक function बनाया है that is called draw line. उसका नाम रखा है हमने draw line. Fine. और उसमें हमारे पास we have 4 parameters. One is x0, y0, x1, y1. Fine. So x0, y0 are the initial point. x1, y1 are the end point. Fine. So as we have discussed in the lesson ham कि हमने इंक्रीमेंटल पॉइंट्स जो है इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स हैं हमारे जो पिक्सल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं. फाइन. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ dx dy. फाइन. एंड दिस p इज द डिसीजन पैरामीटर. फाइन. एंड dx dy आप लोगों को पता है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m एंड दैट इज
y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वो हमने वैसी वैल्यू निकाल ली है, y1 माइनस y0 और x1 माइनस x0, राइट। सो नेक्स्ट जो इनिशियल पॉइंट्स है वो हमने इसमें डाल दिए इंटीजर टाइप वैल्यू, क्योंकि इसमें हम इंटीजर ही यूज करेंगे, जैसे डीडीए में हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ली थी, बट इन दिस केस वी आर ओनली गोइंग टू डील विद द इंटीजर वैल्यू। सो एक्स एंड वाई इनिशियल जो पॉइंट है, क्योंकि एक्स एंड वाई से ही हमने पिक्सल ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव एक्स एंड वाई जिसे हम पिक्सल ड्रॉ कर रहे हैं, फाइन। तो एक्स नॉट वाई नॉट आर द इनिशियल पॉइंट, वो हमने किसमें डाल दिए, एक्स और वाई में वैल्यू डाल दी है, फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर हम पी के की बात करें, वी हैव 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, इनिशियल पॉइंट की अगर बात करें, फाइन, 2 डी वाई माइनस डी एक्स, फाइन। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, दिस इज फॉर इनिशियल डिसीजन 2 dy minus dx means 2 delta y minus delta x, फाइन। ये है हमारा इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, फाइन। सो उसके बाद हमने while लूप लगाई है, क्योंकि हमें पता है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस m is less than 1। अगर हमारा m होता है x is going to increment with 1 and y deals with unit interval, sorry y deals with x is moving with unit interval, और उस केस में हमारा y जो है वो हमें चूज करना है, उसका हमने डिसीजन लेना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग पी के, फाइन। सो हमने लूप जो लगाई है, जैसे डीडीए में मैंने आपको बताया था, जो यूनिट स्टेप के साथ मूव करेगा उस पे हम उस पैरामीटर तक हम लूप लगाएंगे। जैसे अगर मेरी x की वैल्यू फाइनल वैल्यू जो है वो 10 है, तो मेरे 10 स्टेप्स होंगे, फाइन, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द डीडीए आल्सो। अगर हमारे जो x की वैल्यू है उसके 300 स्टेप्स हैं, फाइन, तो हम 300 तक अपनी जो है लूप जो है वो लगाएंगे। तो while लूप हमने लगाई है x is less x1, फाइन, x1 इज अवर फाइनल पॉइंट, तब तक हमने लूप लगानी है, क्योंकि दिस इज द m is less than 1 केस, फाइन। सो वो लूप हमने लगाई, देन हमने लगाई हमारे पैरामीटर्स जो हमारे डिसीजन पैरामीटर्स हैं। वन इज इफ p is greater than equal to 0, in that case हमने क्या करना है, वी हैव y की वैल्यू जो है हमारी नेक्स्ट पैरामीटर वाली हमने चूज करनी है, फाइन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू y प्लस 1, x तो इंक्रीमेंट होता ही जाएगा, y के साथ x विल इंक्रीमेंट, फाइन। x हमारा जो 1 है, देन 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट विद द while लूप, फाइन। बट यहाँ पे y हमने इंक्रीमेंट करना है, फाइन, इन दिस केस क्यों करना है, क्योंकि कंडीशन इज if pk is greater than equal to 0, y will increment, fine। so इस केस में y इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, और ये वाला फॉर्मूला सेम वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको करवाया है, फाइन। pk दिस इज इनिशियल डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, और यहाँ पे आपके पास था yk प्लस 1 माइनस yk। अगर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हम चूज कर रहे हैं उस केस में यहाँ पे आ जाता है 1, अदरवाइज यहाँ पे आ जाता है 0, फाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी, फाइन, बिकॉज यहाँ ऐसे मैं लिख के भी नहीं बता सकती, फाइन, क्योंकि हमारे पास क्या था यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। अगर इफ व्हाइट बोर्ड, ओके नो प्रॉब्लम, व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ। आफ्टर दैट यू विल गेट दिस पॉइंट, फाइन। आई एम गोइंग टू शेयर द व्हाइट बोर्ड। सी, जो हमारे फॉर्मूलाज थे, जो हमने इनिशियल डिसीजन निकाला था, दैट इज 2 डेल्टा वाई, अगर आप लोगों को याद हो, फाइन, 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स के इनिशियल डिसीजन हमने इससे निकालना था, फाइन। दिस इज अवर इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, इनिशियल मींस द फर्स्ट वन जिससे हमने डिसीजन निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड पीके इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉरी, अगर आपने एल्गोरिथम अच्छी तरह से देखा है, फाइन।
सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, हमने बोला था कि सक्सेसिव डिसीजन विल बी टेकन बाय p plus 1 is equals to pk plus 2 delta y plus 2 delta y minus delta x and we have yk. इस चीज की मैं बात कर रही हूँ, दैट दिस थिंग आई हैव नॉट रिटन देयर. रीजन इज, जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, यू कम टू नो, अगर हमारे पास नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर ये वाला केस है, पी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यही केस हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में. फाइन. अगर हमारे पास ये है, इस केस का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा अपर वाला हमने चूज किया है. फाइन. तो इस केस में सपोज ये मैंने 7 चूज किया, ये 6 चूज किया है, तो 7 माइनस 1 ऑलवेज 6, सॉरी ऑलवेज 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा. फाइन. 7 माइनस 6 इज 1. तो हमने जो प्रोग्राम में फॉर्मूला लगाया मैंने, फाइन, वो है पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स. फाइन. लाइक दिस हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया. सो मीन्स अगर हमारा ये वैल्यू लेस देन होगी, in that case means this is going to be 0. so we left with only pk plus 2 delta y. तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला आएगा pk plus 2 delta y. यहाँ पे भी 2 था. फाइन. 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, मैंने गलती से नहीं लिखा. सो अगर हमारे पास लेस देन वाला केस है तो हमारे पास ये बचेगा. क्यों बचेगा? क्योंकि yk प्लस 1 की वैल्यू भी yk है और yk की वैल्यू तो yk है ही. yk माइनस yk मीन 0. 0 का मतलब है ये वाली टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी. एंड वी लेफ्ट विद ओनली k प्लस 2 डेल्टा y. आर यू गेटिंग मी? यस क्लास. अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क. Okay. If anyone have any doubt, you can ask, बच्चे. I'm explaining. Fine. So we have initial decision parameter, that is 2 delta y minus delta x. We have discussed in the numerical. And whenever we are going to find the successive decision parameter, in that case we have a formula pk plus 2 delta y minus 2 delta x yk plus 1 minus yk. अगर तो yk plus 1 next point है, next point means its value will be up, 1 up. Fine. तो यहाँ पे अगर 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 3 होगा. फाइन. सो इट विल बी 1. 1 मीन्स 2 डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय 1. सो इसीलिए जो फाइनल वैल्यू है हमारी, हमने जो लिखी है प्रोग्राम में, वो लिखी है पी के प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x. फाइन. बट अदरवाइज इन द सेकेंड केस, एल्स वाला केस हमारे पास क्या है, पी के इज लेस देन 0. if it is less than 0 means we are going to select yk as the next pixel. so yk minus yk, it will be 0. अगर ये 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा. we left with pk plus 2 delta. is it clear to all? yes class. okay, anyone have any doubt? no one have any doubt? yes class. raise your hand, raise your hand जिनको क्लियर है.
Yes, rest of the students. Okay, fine. Okay, fine. We are moving to the implementation. Fine. I'm going to share the screen. Screen is visible. Yes, class screen is visible. Okay, fine. Okay, fine. See, after calculating the value of dx and dy, fine, and x naught and y naught are the initial, we can say that initial pixel, fine, where we are going to start our line, fine. So P2 dy minus dx is the initial decision parameter, fine. So this is the initial decision parameter, फाइन. देन हमने वाइल लूप लगाई है. वाइल लूप कब तक चलेगी? जब तक जैसे m इज लेस देन 1 केस है. दिस इज द केस m इज लेस देन 1. अगर हम देखें m इज लेस देन 1 में x इज मूविंग विद यूनिट इंटरवल, सो लूप हमने x की लूप लगाई है, फाइन. अगर हमारे पास दूसरा केस होता, सपोज m इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस हमने क्या करना था? लूप क्या लगानी थी? y इज लेस देन y1, फाइन. तो इस केस में हमने x की लूप लगाई है, x 1 तक ये चलेगी, फाइन. और हम कैलकुलेट क्या करना है बेसिकली कि अगर हमारा p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, p की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की यहाँ पे, फाइन. ग्रेटर देन है तो उस केस में ये क्या करेगा? y को इंक्रीमेंट करेगा. x तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है क्योंकि x वाइल लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है. y is going to be incremented in this case, fine. Put pixel x, y, 7. जो x, y, 7 में मींस x और y की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी इंक्रीमेंट होके, उससे वो पिक्सल हम ड्रॉ करते जाएंगे, फाइन. और जो डिसीजन पैरामीटर p है हमारा, फाइन, इस केस के लिए हमारा डिसीजन पैरामीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? p प्लस 2dy माइनस 2dx. अभी अभी जैसे मैंने बोर्ड पे बताया, फाइन. y के 1 माइनस because we have successive points. Successive point means we have suppose 8 minus 7 is 1. So that's why we are considering it as 1. Fine. So next we have else case. Fine. Else case means p is less than 0. Fine. So in that case we are going to uh, put pixel x comma y comma 7. Fine. And means we can say that we have a decision parameter. Decision parameter इस केस में था p प्लस 2dy माइनस 2dx. इस केस में क्या आएगा? p प्लस 2dy माइनस 2dx. क्यों नहीं आया? क्योंकि सेम वैल्यू हम चूज कर रहे हैं. सेम वैल्यू जब चूज करते हैं इन दैट केस इट विल बी 0. कैंसिल हो जाती है वो वैल्यू yk माइनस yk, इट विल बी 0, फाइन. सो we have also applied the delay function so that we can draw the line with some speed, fine. तो जो हमने फंक्शन बनाया था वो हमने void main में कॉल करना है. void main है, फाइन. ये फंक्शन है एक लाइन ड्राइंग का, और इसमें हमने लिंक दिया है. दिस वन इज फाइन. जीडी ये आपने पहले कर लिया है, फाइन, डिस्कस कर लिया हमने. सो वी आर entering the coordinates, entering the first point, fine, x naught y naught, entering the second point x1 y1, and then we are going to draw a line. दिस इज अ फंक्शन जो हमने अभी अभी फंक्शन बनाया है 4 पैरामीटर के साथ, वो हमने ड्रॉ लाइन यहाँ पे कॉल की है फंक्शन, फाइन. गेट सी एच एंड ब्रैकेट curly bracket close. So I'm going to run this program, fine. Just a minute.
So next we are going to enter the coordinates. Fine. See, now I have entered 100. Fine. These are the initial value of my point. Fine. We can say that x naught, y naught. Fine. So next I am going to enter the value of x as 300 and value of y as suppose 100. Then it will be a straight line, horizontal straight line. Why it is horizontal? Because we have incremented the x value only. Fine. Y value is same. Y value 100 ही रहेगी. X value मैंने increment की है. So this is the line. Fine. And with some other points, we have initial point as 0, 0. And this is suppose 200, 200. Then it is going to start from the origin. And drawing the line like this. Fine. So suppose now I'm going to change the coordinates of y-axis and my x-axis coordinates remain same. Just a minute, I'm going to run the program again. Why it is not working? Fine. So anyone have any doubt in the program? You can ask, bache. If anyone have any doubt. Yes, class, anyone have any doubt? Yes, anyone have any doubt? No one have any doubt? Yes, class. Are you getting me? Am I audible? आज क्लास सो रही है सारी? I think so. Today the class is sleeping. Am I right? Okay, fine. Okay. Anyone have any doubt? No one have any doubt? Yes, class. Anyone have any doubt in any previous practical? Okay, fine. No one have any doubt. Okay, fine. You have done your pre-lab questions on BB. You have done your pre-lab.
अगर किसी ने नहीं किए, प्री लैब पोस्ट लैब दोनों क्वेश्चन अपने कर लो, फाइन, अभी अटेम्प्ट करो। ओके, अगर किसी ने नहीं किए, आपने पोस्ट लैब क्वेश्चन, प्री लैब क्वेश्चन कर लो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम, फाइन। Do your pre-lab as well as post-lab question. I am giving you 5 minute time. Yes, बाद में भी कर सकते हो बच्चे, फाइन। अगर किसी के पास अभी किसी को प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेट इशू है, फिर आप बाद में कर लो। बाकी सारे स्टूडेंट जिनको मैं बोल रही हूँ, फाइन, आपने अभी करने हैं क्वेश्चन। सो अटेम्प्ट योर pre-lab, post-lab, fine. After that, I will start with your evaluation, fine. If anyone have any doubt, any of the practical, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई, वो आप पूछ सकते हो। So our next practical is basically that is the 5th one, fine. हमारा practical है regarding transformation, fine. Yes बच्चे, आपने सेकेंड जो इसमें मैं डाउट्स लूंगी, अगर किसी को डाउट है, फाइन। सेट फिल स्टाइल, ओके, वो नहीं पता चला, फाइन, ओके। एनीवन एल्स, और किसी को कोई डाउट है? In this lecture we will discuss the doubts, fine, and next lecture I will take your evaluation. जितने बच्चों की स्क्रीन हम शेयर करवा सके उतने बच्चों की स्क्रीन, फाइन, मैं शेयर करवाऊंगी। उसके अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू मार्क यू ऑन द वर्कशीट। ओके, इसके अलावा और किसी का डाउट? Yes, anyone have any other doubt? No problem. Yes. evaluation कौन से एक्सपेरिमेंट की होगी? सी बच्चे, अभी तक मैंने आपके जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फाइन, उसकी एवेल्युएशन ही ले रही हूँ अभी तो, फाइन। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं, नहीं तो 2 प्रैक्टिकल में लगाऊंगी ये नंबर आपके, फाइन। क्योंकि सबकी स्क्रीन शेयर करवाना इज नॉट पॉसिबल इन द वन लेक्चर। आज हमारे पास पूरा लेक्चर होगा एक, फाइन। इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डाउट, फाइन। अब जो आपने मुझे प्रोग्राम दिखाना है वो आप दिखा सकते हो, फाइन, डीडीए दिखा दो मुझे। ये एक्सपेरिमेंट 1.1 दिखा दो, फाइन। क्योंकि और आप शेप्स भी दिखा सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम ही आपने शेप्स भी लास्ट टाइम ही की हैं, फाइन। जैसे हार्ट हो गया, स्टार हो गया, कार हो गया, अगर किसी ने वो ड्रॉ की है वो भी आप दिखा सकते हो। ये सेटफिल है बेसिकली। ये प्रोग्राम अगर किसी ने नोट करना है आप कर लो, फाइन, वैसे तो आपको इजीली मिल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, फाइन। और सेटफिल स्टाइल जो है उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आपने किसी चीज में कलर फिल करना है, फाइन। आपने अगर किसी भी पॉलीगन में कोई डायग्राम में कलर फिल करना है, तो यू कैन गिव द पैटर्न। सेट फिल स्टाइल में हमारे पास 2 पैरामीटर हैं। फर्स्ट वन इज पैटर्न, फाइन। अब तो मुझे नंबर याद नहीं है, में हम 0 to 11 कर लेना। डिफरेंट स्टाइल है जो हम दे सकते हैं, जैसे सॉलिड फिल हो गया, लाइन फिल हो गया, और मींस अलग अलग तरह के आप फिलिंग कर सकते हो, फाइन। कोई भी डायग्राम है उसमें अगर आपने एज सच कलर नहीं करना, ओके, नाउ इट इज फाइन। सो में आपने क्या करना है, वन इज
your pattern. First parameter is your pattern and second is the color. Fine. So set fill style means if you want to fill, एक सर्कल ड्रॉ करो, फाइन, उसमें सेट फिल स्टाइल अगर आप लिख रहे हो, सपोज आप सॉलिड फिल लिख रहे हो, सॉलिड फिल करना है आपने, फाइन, और इसके नंबर भी यूज कर सकते हो आप 0 से लेके 11 तक, पैटर्न जो है अलग अलग यूज करके देखो, फाइन, कौन कौन सा पैटर्न है किस नंबर पे। और दूसरा आपने पैरामीटर क्या देना है, कलर। You need to give two parameter. First one is your pattern and second is your color. तो second is flood fill. एक और है flood fill. Flood fill में आपने क्या करना है, जैसे बाउंड्री फिल वैसे फिल है, इसमें आप क्या कर सकते हो, बाउंड्री जो है जैसे सर्कल की बाउंड्री हमने फिल करनी है, बाउंड्री फिल कर सकते हो विद सम डिफरेंट कलर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ये सारे यूज करके देखो एक बार, बैकग्राउंड कलर सेट करके देखो, फाइन, जो भी आपने जैसे हट बनानी है, अगर कार बनानी है, उसका बैकग्राउंड कलर सेट बीके कलर वो करके देखो। सो यूज दीज डिफरेंट फंक्शन, फाइन। एक फंक्शन ड्रॉ पॉली, वो मैंने आपको बताना है, वो मैं बता देती हूँ अभी। ये सबका हो गया, इज इट फाइन क्लास, ये सबका हो गया, एनीवन लेफ्ट बता दो मुझे, ओके फाइन। जैसे सपोज अगर आपने कोई भी पॉलीगन बनानी है, सपोज आपने ट्रायंगल ही बनानी है, फाइन। सो इन द केस ऑफ ट्रायंगल, अगर हमने वैसे ट्रायंगल बनानी है, इन दैट केस हम यूज करते हैं 3 लाइन्स, फाइन। यू नीड टू यूज 3 लाइन्स कि अगर हमने ट्रायंगल बनानी है। फाइन, अगर हमने ट्रायंगल बनानी है वैसे हम 3 लाइन लिखेंगे, फाइन। सपोज अगर आपने ड्रॉ पॉली फंक्शन यूज करना है, फाइन, उससे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि पैरामीटर्स जो आपने बनाए हैं, जो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं, पैरामीटर मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फाइन। ड्रॉ, इट्स ड्रॉ पॉली, DRAWPOLY, ड्रॉ पॉली, इट्स अ फंक्शन, फाइन। ड्रॉ पॉली का कुछ और ही बन गया यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। डी कैपिटल नहीं आपने लिखनी है, फाइन, डी स्मॉल। ड्रॉ पॉली इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फाइन। सो इसके 2 पैरामीटर्स हैं, फाइन। वन इज योर नंबर ऑफ वर्टिसेस n, फाइन, एंड अदर वन इज योर पॉइंट्स p। 2 पैरामीटर्स हैं इसके, फाइन। वन इज n is the number of vertices, फाइन, एंड p is the points। आप पहले क्या करोगे, जैसे एक एरे बना लिया आपने, फाइन, गॉड, सपोज ARR एक एरे बना लिया आपने, फाइन। उसके अंदर आप क्या करोगे, पॉइंट्स दे दोगे, फाइन। उसके अंदर आप सारे पॉइंट्स दे दोगे, यहाँ पे आप उसको कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ARR ले लिया, यहाँ पे फिर आप ARR लिख, फाइन, यहाँ पे आप ARR लिखोगे। सो सबसे पहले n है, n मींस नंबर ऑफ वर्टिसेस। अगर हम देखें वैसे ट्रायंगल में नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, 3 है, फाइन। एक ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला और ये वाला, बट यहाँ पे हमने 4 लिखना है, n+1। वाई n+1? बिकॉज अगर हम देखें ट्रायंगल 1 1, फाइन, 2 3 एंड क्लोज्ड, अगर आपने इसको क्लोज करना है तो यू नीड 4 वर्टेक्स होंगे अगर हमने इसको क्लोज करना है।
तो आपने जो यहाँ पे वैल्यूज देनी है पॉइंट्स में, वो भी कैसे देनी है, x1 y1, यहाँ पे मैं सिर्फ x1 y1, x2 y2, फाइन, x3 y3, x1 y1। मीन्स आपने चार जो है वो वर्टेक्स क्लोज शो करने के लिए कि हमारा जो है, हमारी जो डायग्राम है वो क्लोज्ड है, तो ट्रायंगल के लिए यू नीड 4 वर्टेक्स। अगर रेक्टेंगल आएगा उसके लिए n+1 मीन्स 4+1 5, right? If anyone have any doubt, you can write in the chat box. Fine. So means for triangle n vertex कितने होंगे हमारे, 4 vertex होंगे, fine. और points कितने होंगे, points हमारे लेने हैं हमने x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1, means 4 हमारे पास अलग अलग जो है इसके points आ जाएंगे, fine. यहाँ पे हमने उस एरे को कॉल कर लेना, और यहाँ पे आपने जस्ट एरे में वैल्यूज रखनी है, यहाँ पे आपने एरे को कॉल लेना है इन ड्रॉ पॉली। यस क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट? ड्रॉ पॉली फंक्शन में किसी को डाउट है? मींस कोई भी पॉलीगन अगर आपने ड्रॉ करनी है, फाइन, आपने उसके एक तो वर्टेक्स की जो वैल्यूज है वो लेनी है। ओके फाइन, आई एम रिपीटिंग, फाइन. So draw poly function is used to draw the different kinds of polygons. अगर आपने rectangle draw करनी है, triangle draw करनी है, जो कोई भी और शेप ड्रॉ करनी है, फाइन, जिसमें आपने कोई भी और शेप चाहे पेंटागन ही ड्रॉ करनी है, बट जस्ट यू नीड टू नो कि जैसे आपने ये पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से एंटर करने हैं, वो आपने एक बार नोटबुक पे जैसे आपको ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे, फाइन. So उसके लिए we have two parameters, one is n is the number of vertices, कि अगर हमारे पास सपोज रेक्टेंगल है तो नंबर वर्टिसेस कितने होंगे, अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट करें, सपोज फर्स्ट वर्टेक्स से 1 2 फाइन 3 4, अगर यहाँ तक करोगे 4 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ तक की डायग्राम बनेगी 1 2 3 4. अगर आप 5 लिखोगे देन ओनली इट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, फाइन. सो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, वी नीड 5, n वैल्यू ऑफ n इज 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 5. तो पॉइंट्स भी कितने होंगे, ऑब्वियसली 5 की वैल्यू लेंगे हम, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और x1 y1, कॉमा x1 y1. सो कॉमा कॉमा के साथ आपने ये सारी वैल्यूज ले लेनी है, एक एरे ले लेना है आपने, उसमें आपने वैल्यूज ले लेनी है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, राइट. तो एरे को यहाँ पे ARR यहाँ पे आपने कॉल कर लेना, लाइक दिस. एनीवन हैव एनी डाउट नाउ? एक बार यूज करके देखोगे देन यू विल बी मोर क्लियर, फाइन. लास्ट टाइम कुछ बच्चों की इवैल्यूएशन हो गई थी लास्ट टाइम. ड्रॉ पॉली के दो पैरामीटर्स क्या होंगे, वन इज इंट, वी कैन से दैट नंबर ऑफ वी कैन से दैट वर्टिसेस, फाइन, दैट इज ऑलवेज n+1. जितने भी आपको वर्टेक्स लग रहे हैं, जैसे ट्रायंगल के 3 हैं, इट विल बी 4, फाइन. और सेकंड इज जो पॉइंट्स हैं उसके, जितने आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं उनकी वैल्यूज, सेकंड में क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स, और वी कैन से दैट वैल्यूज. So join the second session, fine. You can leave this session, join the second session.